today is my second last part of this entire series. और इस सारी श्रृंखला का आखिर से दूसरा जो है वो आज मैं लेने वाला हूँ। And next week will be the last part of this message. और इस संदेश का आखिरी भाग अगले हफ्ते मैं लेने वाला So हूँ। next week तो अगले हफ्ते we'll have the anointing session. Is it allowed or not allowed? हम अभिषेक का सत्र जो है वो यहाँ पर लेने वाले हैं। And we'll be I'll be giving you a live demonstration exactly what is the anointing. और मैं आपको उदाहरण दिखाने वाला हूँ कि सचमुच अभिषेक होता क्या है। And you will have a wonderful experience next week. और अगले हफ्ते सचमुच आप एक अद्भुत अनुभव आप लेने वाले हो। Amen. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। You know, so many years I have been a pastor. This is again a small joke kinds. और इतने साल हो गए हैं कि मैं पास्टर हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा मजाक मैं आपको बताने वाला हूँ। I have never been, being a pastor is not easy actually. देखो पास्टर बनना बहुत आसान नहीं है। It's not at all easy. ये सचमुच आसान It's नहीं very है। difficult. ये बहुत ही मुश्किल है। When people say, with excitement, I want to be a pastor, जब लोग उत्तेजित होकर कहते हैं कि मुझे पास्टर बनना है, I say in my heart, तो मेरे दिल में कहता हूँ God help you. परमेश्वर ही तुम्हारी सहायता करे, Because it is not easy at all. क्योंकि वो सचमुच आसान नहीं है। And many times I have been telling the Lord, oftentimes, और अक्सर मैं परमेश्वर से कहता हूँ that Lord, I really don't want to be a pastor. कि परमेश्वर मैं सचमुच पास्टर नहीं बनना चाहता। I'll serve you anything, I'll do anything for you. मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, But it is so difficult to be a pastor, especially. लेकिन एक पास्टर बनना बहुत ही मुश्किल है। Because it is the responsibility of so many people on your head. क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सभी लोगों के मेरे अपने सिर पे। Yeah, and that's what happens. उसकी वजह से So, तो when this corona came, लेकिन जब ये कोरोना आया, I thank God for being a pastor. मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं एक पास्टर हूँ। Yes, why? सोचो क्यों? I'm the only one without mask. क्योंकि मैं अकेला हूँ बिना मास्क। And it's very difficult to breathe through this mask, right? और ये मास्क लगा कर सांस लेना बहुत मुश्किल है। तो pastor बनना अभी अच्छा लग रहा है। Okay, so let me go into today's word. Today I'm going to talk to you about how do we approach God in prayer. चलो आज के वचन में हम चले जाएंगे और आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं। What kind of prayer you need to do exactly so that the Holy Ghost will touch you like this. और हम किस प्रकार का हमें दुआ करना है ताकि पवित्र आत्मा जो हमें ऐसे छू जाए। How many want the Holy Ghost to touch you like this in one shot? कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको ऐसे छू जाए? Can you show me your hands, please? अपने हाथ में दिखा सकते हैं Okay, हमें। let's open the Bibles to John 20, everybody. आइए हम अपने बाइबलों को खोलेंगे यूहन्ना इसका 20वां अध्याय And let us read from verses 19 onwards. और आइए हम वचन 19 से आगे पढ़ेंगे। Before I forget, लेकिन भूलने से पहले if Jesus calls, invites me again after this next week. अगर अगले हफ्ते के बाद Oh, it's my pleasure. और अगर अगले हफ्ते के बाद अगर जीसस कॉल मिनिस्ट्री जो है अगर वो मुझे फिर बुलाएंगे I have a special. Sorry? 24/7. Amen. Amen. I have a special topic for all the unmarried youth. और जिनकी शादी हुई नहीं है ऐसे सारे जवानों के लिए I have a special topic, उनके लिए एक विशेष संदेश है and that is the wrong one. और वो है गलत जोड़ीदार। जोड़ीदार। Yeah. It is going to teach you exactly how do you know who is the right person for me. वो उसमें से आपको ये पता चलेगा कि आप कैसे जान पाओगे कि कौन मेरे लिए सही है। Amen. Amen. Marriages are taking place today, a lot of marriages. और आज की तारीख में बहुत सारे शादियां हो रहे हैं And that many go back to divorce also. और उतने सारे डिवोर्स तलाक तक भी पहुंच जाते हैं। And, it's very dreadful actually. और ये बहुत ही बुरा है That, divorce is happening very fast. कि तलाक जो है बहुत जल्द हो रहे हैं। And the Lord's words say divorce is not right in the sight of God. और परमेश्वर का वचन कहता है कि तलाक जो है परमेश्वर के नजरों में सही नहीं है। And at the same time, we pastors don't allow divorce. और उसी वक्त हम जो पास्टर है हम भी तलाक के लिए हम परवाना नहीं देते। But also, marriage with the wrong person is worse than, I can say, taking poison every day. और लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर शादी हमने गलत इंसान के साथ किया है तो ये हर दिन जहर लेने से भी बदतर है। Yeah, it's like jail.
वो जेल के समान है, because the person doesn't match your frequency. क्योंकि जो व्यक्ति है वो आपके फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं होते, You don't match with that person, आप उनके साथ उनका कोई तालमेल नहीं होता, and there is non-stop boxing match, और बार बार बॉक्सिंग का मैच उधर जारी रहता है, and marriage becomes horrible. और उसके बाद शादी जो है वो बहुत ही बुरा हो जाता है। But is this the plan of God? लेकिन क्या ये परमेश्वर की योजना है That marriage should be so horrible? कि शादीशुदा जिंदगी जो है वो ऐसी होनी चाहिए, इतनी बुरी? You know, I'll give you a small statement which often married couples say. देखो, मैं आपको एक वाक्य देता हूँ जो अक्सर शादीशुदा जो जोड़ी है वो ये कहते हैं। Like suppose a female or a male, man or woman, either of them. कोई भी पति या पत्नी या फिर वो पुरुष या स्त्री जो भी है, Like example, the meeting is going on, so but it gets a bit late. उदाहरण के तौर पे मीटिंग अभी जारी है और कल्पना करो कि थोड़ा देर हो जाता है। Brother or sister, XYZ. भाई या बहन जो भी है, If their partner is at home, अगर उनके जो जोड़ीदार है वो घर पर है meeting gets over, supposing instead of getting over at 6:30, और मीटिंग खत्म हो जाता है, वो 6:30 को खत्म होने के अलावा it gets over at suppose 7 o'clock. वो शायद 7 बजे खत्म हो जाता है। Immediately the married partner who is here, तुरंत ही जो शादीशुदा जोड़ीदार जो यहाँ पर है मीटिंग में, जोड़ी नहीं लेकिन एक ही इंसान, लेकिन उनमें से एक यहाँ पर जो मीटिंग में है, immediately they say like this. तुरंत ही वो ऐसे कहते हैं, आता मला घरी जायचं बाबा नाही तर फक्त असू. Why is that statement like this? अभी मुझे घर जाना है तो बहुत बुरा होगा। वो वाक्य ऐसा क्यों होता है? Why is it like this? Oh, I have no issues. I know I've got an understanding partner at home. वो ऐसा क्यों नहीं कहते? ओ, कोई समस्या नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरे घर पे जो जोड़ीदार है, मेरा या मेरी जो जोड़ीदार है वो बहुत समझदार है। But usually the statement is like this. पढ़ा. लेकिन अक्सर भयानक भी. लेकिन जो वाक्य होता है वो ये होता है, चलो भागो नहीं तो बहुत ही कुछ बुरा होगा। Yeah, you know, it's like, you know, you're sent out on bail. वो ऐसा है कि आपको बेल पे बाहर भेजा है, And you have to rush back again before the jailer comes. और जेलर आने से पहले आपको वापस घर पहुंचना है, वहाँ पे पहुंचना है। So I don't think this is the plan of God about marriage. देखो, मुझे तो नहीं लगता कि परमेश्वर की योजना शादी के बारे में ऐसी है। Amen. Marriage should be exciting. शादी जो है वो अद्भुत होने चाहिए, रोमांचक होना चाहिए। So if Jesus calls me again, I will take this special seminar, one-day seminar, I can say, we can go for 2-3 weeks. I don't know. However, the Lord leads us, or what is the plan? We'll have the seminar of the topic called as the wrong one. और अगर जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री जो है, अगर सेवकाई जो है वो अगर मुझे वापस बुलाते हैं तो फिर शायद हम एक दिन का सेमिनार या फिर 1-2 हफ्ता या फिर जैसे परमेश्वर चलाएगा या जैसे योजना बन जाती है वैसे हम ये जो विषय है आप लोगों के लिए विशेषकर गलत जोड़ीदार, ये जो विषय है वो मैं लूंगा। Amen. Amen. How many are excited for that? कितने लोग उसके लिए उत्तेजित हैं? Married and unmarried चलेगा. शादी हो या शादीशुदा Yeah, हो his या hand नहीं is हो। up. His hand is up. Even if you're married, you're welcome because the reason is आपकी शादी अगर हो भी गई है तो भी कोई समस्या नहीं, लेकिन कारण ये है आप आ सकते because you हो, may have kids, you can guide your child. आपके बच्चे होंगे और आप उन्हें मार्ग दिखा सकते हो। The age group will be 18 onwards. और जो वय का गट जो है, उम्र जो है वो 18 से ऊपर होनी जरूरी है। Actually, I believe 15 onwards because nowadays, even when they are at 15 age, they decide whom to marry. और मैं तो कहता हूँ 18 नहीं, लेकिन 15 जो उम्र है वही से शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज की तारीख के जो बच्चे हैं वो 15 से ही शुरू हो जाते हैं कि अभी हमको किससे शादी करना है। Yeah. Anyway, so let's go into today's word. तो जो कुछ भी आज के वचन में हम चले जाएंगे। Amen. Let's open our Bible to John 20, everybody, आइए हम अपने बाइबलों को खोलेंगे, यूहन्ना इसका 20वां अध्याय and verses 19 onwards. और वचन 19 से आगे। Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। Amen. आमीन। Now, people of God, whenever you start praying, अब परमेश्वर के लोगों, जब कभी भी आप दुआ करना शुरू करते हो, as I told you last time, जैसे मैंने पिछले बार आपको बताया था, you need to make sure your doors are shut. आपको ये ध्यान रखना है कि आपके
आपके जो दरवाजे हैं वो बंद है, of your room and of your mind. आपके कमरे के भी और आपके मन के भी। I have told you that I'm going to train you, I'm going to teach you exactly how to shut the door of your mind. और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रशिक्षण देने वाला हूं कि कैसे आप आपके मन के जो दरवाजे हैं वो आप बंद कर सकते हैं। Let me tell you everybody, देखो मुझे आप सभी को बताना है, whenever you start praying, जब कभी भी आप दुआ करना शुरू करते हो, it takes at least minimum half an hour देखो कम से कम आधा घंटा लगता है with full concentration पूरे ध्यान के साथ to bring your thoughts in one place. कि आपके जो सारे सोच विचार है उन्हें एक जगह पे ले आने के लिए। I mean, it takes minimum half an hour. वो कम से कम आधा घंटा लगता है। Why? क्यों? Because we are human beings of the world. क्योंकि हम इस दुनिया के इंसान हैं। We walk around everywhere with the eyes open. हम इस दुनिया में अपने आंखें खोलकर सभी जगह पर चलते हैं। And it is the tendency of the brain और वो मस्तिष्क जो अपना जो ब्रेन है उसका फितरत ही है that when moment you close your eyes, कि जैसे आप आपके आंख बंद करते हो, it starts telecasting, whatever you have seen throughout the day. कि जो कुछ भी आपने दिन भर में देखा है वो आपके आंखों के सामने वो ले आता है। If you observe, you just close your eyes for a few seconds, you will see the staircase down. अगर आप ध्यान दोगे कि अगर कुछ क्षणों के लिए अगर आप इस वक्त आपके आंख बंद करोगे तो आपको यहाँ का जो स्टेयरकेस है वो आपको दिखाई If देगा। you have paid attention while coming up अगर आपने ध्यान दिया हो ऊपर आते हो on the staircase, स्टेयरकेस पर, whatever you see throughout the day, it starts reflecting. जो कुछ भी आप दिन भर में देखते हो वो सामने आ जाता है। But लेकिन the Lord has given us the Holy Spirit. परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा देके रखा When है। the Holy Ghost comes, जब पवित्र आत्मा आता है every thought goes. हर सोच विचार जो है वो चले जाते हैं। Amen. आमेन। So you should be open to the anointing. You should be open to the Holy Spirit. लेकिन आपको अभिषेक के लिए और पवित्र आत्मा के लिए खुला रहना जरूरी है। Watch what happened over here in verse 19. ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ वचन 19 में। When the doors were shut, Jesus came in. जब दरवाजे बंद थे तब यीशु अंदर आया। Amen. Amen. You need to make sure you shut the door. आपको ये ध्यान रखना है कि आप दरवाजे जो है ठीक से बंद करें। Turn to somebody and say, shut the door. किसी के पास मुड़कर उनसे कहो कि दरवाजे बंद करो, Please say, "Baat." दरवाजे बंद करो, Once again. दरवाजे बंद करो। Yeah, we sit in prayer and our minds are everywhere and we say, God is not touching me. हम दुआ में बैठते हैं और हमारा मन जो है वो सभी जगह पर होता है और फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे क्यों नहीं छूता है। I've seen this happening, whenever there's a fight at home and we sit for prayer and we say, God to intervene. और मैंने ये देखा है कि अगर हमारे घर पे कुछ झगड़ा हो जाता है उसके बाद हम दुआ में बैठते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर अब तू बीच में आ जा। और तू कार्य कर, and God doesn't come to touch us also. और उस वक्त परमेश्वर हमें छूता भी नहीं है। Why? क्यों? Because in our mind still the fight is going on. क्योंकि हमारे मन में तब युद्ध जो है या फिर झगड़ा जो है तभी जारी है। Eyes are closed. आंखें बंद है, We are sitting in prayer हम दुआ में बैठे हैं like this, anyhow. ऐसे कैसे भी, But we are still fighting with each other in the mind. लेकिन मन में अभी भी हम एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे And हैं। after half an hour, 1 hour, 2 hours, 3 hours, we see still there is no God coming down and touching us. Nothing is happening. और आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद भी हम देखते हैं कि परमेश्वर नीचे उतर नहीं आता और हमें छूता भी नहीं है। Why? Because in our mind the fight is going on. क्यों? क्योंकि हमारे मन में अभी भी वो झगड़ा जारी है। Now the point is, अब मुद्दा ये है, we need to shut the door. हमें दरवाजे को बंद करना है। How do you do that? और हम वो कैसे करेंगे? Watch. देखो, Whenever you sit for prayer, the first thought that comes, stop it. जब कभी भी आप दुआ में बैठते हो और जो सबसे पहले जो विचार आता है उसे बंद करो। Amen. How do you do that? आप कैसे वो करोगे? Open your eyes. आपकी आंखें खोल दो, Stop. रुक जाओ, Get yourself reset. खुद को रीसेट करो, Again start. फिर से शुरुआत करो। This will take some time. देखो ये कुछ वक्त लगेगा। Why? क्यों? Because we do not focus on this point at all. क्योंकि हम इस मुद्दे पर ध्यान देते ही नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, again when you start praying, फिर से जब दुआ शुरू करोगे, if you pray in your mind, अगर आप देखोगे, अगर आपके मन में आप दुआ करते हो, you will not be focused at all. आपका बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा। But if you start praying loudly, लेकिन अगर आप जोरों से दुआ करोगे, not very loudly, or like this kind of a voice, like this, बहुत जोरों से नहीं, लेकिन इस आवाज में, your mind will start focusing. आपका मन जो है अब केंद्रित होगा। But now what you do is, लेकिन अब आपको क्या करना है? वो you ये have to है, focus on welcoming the Holy Spirit. आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि पवित्र आत्मा का स्वागत आपको करना है। Amen. Now I'll give you some hand positions. You need to focus on these positions exactly. और देखो, अब मैं आपको कुछ कृति करके, हाथों के कृति करके दिखाने वाला हूँ कि इस हाथों को कैसे रखना है और इस कृति पर आपको बहुत ध्यान रखना है। I have seen people when they pray, मैंने देखा है कि जब लोग दुआ करते हैं they stand like this. वो ऐसे रुकते हैं।
You cannot pray like this. देखो ऐसे खड़े रहकर आप दुआ नहीं कर सकते। I'm a marketing guy actually. देखो देखा गया तो मैं एक मार्केटिंग व्यक्ति हूँ And we were taught body language. और हमें शारीरिक चिन्ह जो है वो या शरीर की जो भाषा है वो हमें सिखाया गया था। And it is very important that you should know this. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप ये जान लो। If you go to supposing to meet anybody अगर आप किसी को भी मिलने जाओ and the person is sitting like this before you, और अगर वो व्यक्ति आपके सामने ऐसे बैठा हो he has closed himself. He is not actually interested in what you speak. तो उसने खुद को बंद कर दिया है और जो आप बात कर रहे हो उसमें बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है, नहीं ले रही है। Now, अब if a person sits before you like this, अगर आपके सामने जो व्यक्ति वो ऐसे बैठते हैं he is open. तो वो आपके लिए खुले हैं। Why? क्यों? Because he is surrendering actually. क्योंकि देखा गया तो वो समर्पित हो रहे हैं। Yeah, this position is openness. ये जो ऐसे रुकना या बैठना जो है इसको कहते हैं खुलापन। If a person sits before you, give me that chair. If a person sits before you like this, अगर व्यक्ति आपके सामने ऐसे यानी पैर ऊपर रख के ऐसे पीछे होकर बैठे हैं तो he thinks you are inferior. तो उन्हें लगता है कि आप थोड़े निचले दर्जे के हो। Yeah. So if any moment you are talking to someone, a person is like this to you, understand he is not really looking at you to listen to you. और अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो और सामने वाले जो व्यक्ति अगर इस स्थिति में बैठा है तो ये जान लो कि वो आपको उस नजर से नहीं देख रहा है कि आप उसके दर्जे के नहीं हो और आपको निचले नजर से वो देख रहा है और आपकी नहीं सुन रहा है। Yeah. Now, अब if a person you see listening is sitting like this, अगर आप व्यक्ति को ऐसे देखते हो जो आगे बैठकर आगे की तरफ झुका हुआ है he is keen to listen to you. तो फिर वो आपके सुनने के लिए तत्पर है। Yeah. He is going to listen to whatever you say. आप जो कुछ भी कहोगे वो सब कुछ वो सुनेगा। Why? क्यों? Because he's opening up himself completely. क्योंकि वो खुद को आपके लिए पूरी तरह से खोल रहा है। Now listen. आप सुनो, If you see anybody praying like this, or if you pray like this with their palms open, अगर आप किसी को इस प्रकार में इस स्थिति में यानी आपके हाथों को खुला रखकर अगर वो ऐसे दुआ कर रहे हैं तो anybody see in a cricket match? किसी ने भी क्रिकेट मैच देखा है? इंडिया में ये सवाल पूछना गलत है, लेकिन how do fielders catch? और जो फील्डर्स है वो बॉल को पकड़ते कैसे, कैच कैसे करते हैं? Like this, ऐसे, like this. ऐसे। Come on. There are two positions. One is like this. देखो दो स्थिति, एक ऐसा है, Amen. आमेन, And one is like this. और दूसरा ऐसा है, Amen. आमेन। Usually some players when they try to catch like this, they drop the catch. और अक्सर जब प्लेयर्स ज्यादातर जब वो ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कैच है वो छोड़ देते हैं Yeah. Or they have to get right underneath the ball. या फिर उन्हें बॉल के एकदम नीचे आना पड़ता है। Now, अब but this is the universal, catch position. लेकिन जागतिक तौर पर कैच पकड़ने का पोजीशन ऐसा है। Now watch. अब देखो, Whenever you are praying, जब कभी भी आप दुआ कर रहे हो, Jesus said, यीशु ने कहा, "Blessed are they that hunger and thirst." आशीषित वो है जो भूखे हैं और जो प्यासे हैं। Amen. आमेन, भूखा इंसान ऐसे जाएगा। आमेन। Never go to God, like this. देखो परमेश्वर के पास कभी ऐसे मत जाओ। You are not going to pray for God. देखो आप परमेश्वर के पास परमेश्वर के लिए दुआ करने के लिए नहीं जा This रहे is हो। this is the position of blessing. देखो ये स्थिति है आशीष देने का। When we pastors pray for anybody, we bless them like this. जब हम पास्टर किसी के लिए दुआ करते हैं तो हम इस तरीके से उन्हें आशीषित करते हैं। People don't know. People are not aware, and they say, "God not touching me." और लोगों को पता ही नहीं है और लोग कहते हैं कि परमेश्वर तो मुझे छू ही नहीं रहा है। कैसे छुएगा? तेरा पोजीशन तो ठीक कर पाएगा। Come on. चलो Imagine if Brother Dinakaran has to come over here. कल्पना करो कि भाई दिनकरन जो है वो यहाँ पर आएंगे। How many people go to meet him like this? Yes, brother. कितने लोग उनके पास जाएंगे और क्या ऐसे मिलोगे? हाँ भाई। हाँ भाई. Anyone? Come on. How many will be like this? चलो कितने लोग ऐसे रहेंगे? No, everyone will be like this. Yes. सब ऐसे रहेंगे। हाँ। He's a man of God. देखो परमेश्वर के सेवक है। Amen. Amen. What about God? परमेश्वर का क्या? जो दिखता है इसका मतलब कुछ भी करने का। Amen. Amen. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, this is the place, this is the position when you pray. देखो जब आप दुआ करते हो तो आपकी परिस्थिति जो या स्थिति जो है ऐसी होनी चाहिए। Like this, ऐसे, like this, ऐसे, like this. ऐसे चलेगा, कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ भी चलेगा। Amen. Amen. Don't pray like this, Lord, touch me, Lord.
देखो Lord, touch me, Lord. ये फर्क है. This is not touch me, Lord. I want to touch you. I want to bless you, Lord. देखो ऐसे दुआ मत करो कि परमेश्वर मुझे छू ले, लेकिन परमेश्वर मुझे छू ले. परमेश्वर ऐसे ऐसे ये स्थिति जो है ये सही नहीं है. यहाँ पर आप कह रहे हो कि परमेश्वर मैं तुझे छूऊंगा, लेकिन ऐसे करना है. Now, some people pray like this. कुछ लोग ऐसे दुआ करते हैं. Yes, Lord, here am I. हाँ परमेश्वर मैं हूँ यहाँ. देख, परमेश्वर के पास आए हो, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं. Should be like this. देखो आपको ऐसे होना जरूरी है. Amen. Understand, these are positions. देखो समझ लो ये स्थितियां हैं. If you come to me and talk to me like this, चलेगा, no problem. I don't have any problem. देखो अगर आप मेरे पास आओगे और आप ऐसा खड़े रहकर आप मुझसे बात करोगे तो कोई समस्या नहीं. Because I am a human. क्योंकि मैं इंसान हूँ. But when you talk to God, लेकिन जब आप परमेश्वर से बात करते it हो matters. बहुत मायने रखता Now है. you will say, God doesn't see the outward appearance. लेकिन आप कहोगे परमेश्वर तो बाहर का स्वरूप नहीं देखता. Correct, starting में. सही है शुरुआत में. Yeah, in the start, when you come to the Lord new. जब आप परमेश्वर में नए आते हो तब नहीं देखता है. Amen. आमेन. But when you start growing, लेकिन जब आप बढ़ने लगते हो He matters. बहुत मायने रखता है. Why? क्यों? Even the priest He gave garments. क्योंकि उसने याजकों को भी उसने आच्छादन वस्त्र देके रखा है. Amen. आमेन. He made sure everything is properly clothed. उसने ध्यान रखा कि सब कुछ सही वस्त्र से ढका हुआ है. Yeah, if you know the outward doesn't matter, अगर बाहर का स्वरूप जो है वो मायने नहीं रखता तो then you would have sent Adam and Eve naked only. तो फिर वो आदम और हवा को एदेन के वाटिका से नंगा ही भेजता था. Yeah, but हाँ. नहीं, कपड़े डाल के भेजा. आमेन. So internal matters as well as external matters. तो अंदर का जो है वो भी मायने रखता है और बाहर का जो है स्वरूप वो भी मायने रखता So है. whenever you pray, तो जब कभी भी आप दुआ करते हो your hands should be like this. आपके हाथ जो है ऐसे होने चाहिए. Amen. Amen. Whenever you praise the Lord, जब कभी आप परमेश्वर की स्तुति करते हो it should be like this. वो ऐसे ही होना चाहिए. Amen. Amen. Whenever you are, praising and worshiping. जब कभी भी आप स्तुति आराधना करते हो. Okay, now listen. आप ठीक है आप सुनो. There is one more position देखो और एक स्थिति है that when you are actually praying कि or जब- when you are praising the Lord, कि जब आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो you can bless God like this. आप परमेश्वर को इस स्थिति में आशीषित कर सकते हो. Yeah, you can say, Lord, I bless you because you are really good for me. कि Or आप good to me, or whatever you say, you can bless God, you can praise God like this. आप परमेश्वर की स्तुति ऐसे कर सकते हो. उसे कह सकते हो सच में परमेश्वर मैं तेरी स्तुति करता हूं, तुझे आशीष देता हूं. क्यों? क्योंकि आप मेरे लिए अच्छे हो और आप मुझसे अच्छे रहे हो. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. और हे मेरा जी परमेश्वर की स्तुति करो. जो कुछ भी मेरे में है परमेश्वर की स्तुति कर. You can have a praise given like this. देखो आप स्तुति ऐसे दे सकते हो. But prayer, लेकिन दुआ your palm should immediately turn this way. आपके हाथ जो है तुरंत ऐसे होने चाहिए. Before God, परमेश्वर के सामने never stand like this. कभी भी ऐसे मत खड़े रहो. When praise and worship, स्तुति आराधना में भी never stand like this. कभी भी ऐसे मत खड़े रहो. Your posture shows what's in your heart. देखो आप किस हिसाब से खड़े हो वो ये दिखाता है कि आपके दिल में क्या है. Amen. आमेन. Amen. Amen. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. आमेन. Because why I say this, मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? read verse 20. आज चलो वचन 20 को हम पढ़ेंगे. And when he had so said, he shewed unto them his hands and his side. और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया. People of God, परमेश्वर के लोगों, the wounds which Jesus had taken, जो चोट यीशु ने खुद पर लिया था, जो घाव यीशु ने खुद पर लिया था, for the remission of mankind, ताकि इंसान जो है उसे माफी मिले. people of God, परमेश्वर के लोगों, Jesus showed them the hands, his hands. यीशु ने उसके हाथों को उन्हें दिखाया. Amen. Amen. He showed it to them. उन्होंने यीशु ने उसके हाथ उन्हें दिखाया. Why should there need be that Jesus has to show his hands? He could have proven to them that he is Jesus through any other method. देखो क्या जरूरत थी यीशु को उसके हाथ उन्हें दिखाने के लिए. वो कोई और तरीका अपनाता उन्हें ये दिखाने के लिए वो यीशु है. He would have done anything. वो वहां पर कुछ भी कर सकता था. But what they saw, लेकिन जो उन्होंने देखा, what did they see on the cross? उन्होंने क्रूस पर क्या देखा?
the nails going through the hands of Jesus. जो कीले हैं वो यीशु के हाथों के आर पार जा रहे हैं। Why? क्यों? So that when you pray, ताकि जब आप दुआ करें, your hands are without any nail print. आपके हाथों पर कोई कील न लगे। And his hands are immersed or pierced with nails. और उसके हाथ जो है वो कीलों के साथ दिखाई देता है। Why? क्यों? He wants to see our hands open up before him like this. वो देखना चाहता है कि अपने हाथ जो है उसके सामने ऐसे खुल जाए। Amen. Amen. With the attitude like, Lord, I need you. ऐसे भावना के साथ कि हे परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। Amen. Amen. Whenever you pray, जब कभी भी आप दुआ करते हो, you have to go with the attitude of, Lord, I need you. आपको इस भावना से जाना है कि हे परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। So point number 1, तो मुद्दा क्रमांक 1, shut the door. दरवाजे को बंद करो। Second point, मुद्दा 2, always make sure that you go in the attitude of, I need you. हमेशा इस भावना से जाओ कि हे परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। Point number 3, मुद्दा क्रमांक 3, and that is always repent of your sins. और वो ये है हमेशा अपने गुनाहों से पश्चाताप करो। Amen. Amen. The wounds of Jesus speaks of He dying for us. और यीशु को जो घाव लगे थे वो ये दर्शाता है कि वो अपने लिए मरा। Amen. Amen. He died on the cross, He bled on the cross so that your and my sins will be forgiven. वो क्रूस पर मरा, वो क्रूस पर वो घायल हुआ ताकि आपके और मेरे जो पाप है वो माफ किए जा सकते हैं। Whenever you pray, always first ask forgiveness. तो जब कभी भी आप दुआ करते हो तो सबसे पहले माफी मांगो। Amen. Amen. Do not go with a brazen heaven on your head before God. देखो स्वर्ग को ऊपर स्वर्ग जो है वो पीतल रखकर कभी भी परमेश्वर के सामने मत जाओ। Open your Bibles to Deuteronomy 28, everybody, and verse 15 onwards. और आइए अपने बाइबल जो है वो अनुवाद इसके 28वां अध्याय हम खोलेंगे और वचन 15 से आगे हम पढ़ेंगे। Yeah. परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी न करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। Yeah. Yes, ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। From verse 15 onwards, there is a list of all the curses. If you do not obey the Lord, what will happen? और वचन 15 से आगे वो एक पूरी यादी है श्रापों के कि अगर आप परमेश्वर की नहीं सुनोगे तो क्या होगा। I mean, you can go home and read that. और आप घर जाके उसे पढ़ सकते हो। And verse 23 says, और वचन 23 कहता है, read it. और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। Yeah, means आकाश पीतल का means what? You are under sin and judgment of God. इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के नजरों में या फिर परमेश्वर के सामने आप पापी और न्याय के लिए आप योग्य ठहरे हो। Yeah, that means why doesn't God hear my prayer? और परमेश्वर मेरी दुआओं को क्यों नहीं सुनता? What's wrong? क्या गलत हो गया है? क्योंकि सिर के ऊपर आकाश जो है वो पीतल का हो गया है। The heaven over your head has become like brass. आपके सिर के ऊपर का जो आकाश है वो पीतल सा बन गया है। And the floor, the ground under your feet has become like iron. और आपके पांव तले जो भूमि है वो लोहे सा बन गया है। That means whatever you do doesn't give you any increase. इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आप करते हो उससे मुनाफा आपको कुछ भी नहीं मिलता। You do a lot of hard work, आप बहुत मेहनत करते हो, but nothing gives you profit, nothing. लेकिन उसमें से आपको कुछ भी फायदा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। Whenever you sit for prayer, जब कभी भी आप दुआ के लिए बैठते हो, if you don't clean your slate with the blood of Jesus, अगर आप आपके फलक को यीशु के लहू से साफ नहीं करते, let me tell you, मुझे आपको बताने दो, God is not going to hear your prayers. परमेश्वर आपके दुआ को नहीं सुनने वाला। Yeah, they're just going to bounce and come back to you again. हाँ, वो बस ऊपर आकाश को लगकर नीचे वापस आने वाले हैं। People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी जन ध्यान से सुनो। You need to have a clean slate before God. देखो परमेश्वर के सामने आपका फलक जो है वो साफ होना And चाहिए। how does it happen? और वो कैसे होता है? By asking forgiveness in the name of Jesus. यीशु के नाम में माफी मांगकर। Every time when you pray, हर बार जब आप दुआ करते someone will say, हो, कुछ लोग कहेंगे, if I ask forgiveness in the morning, why should I ask forgiveness in the afternoon? अगर मैंने सवेरे ही माफी मांगी है तो दोपहर को माफी फिर से क्यों मांगू? Because you're a human being. क्योंकि आप इंसान हो। How many are humans here? यहाँ पर कितने इंसान हैं? All are sinners. Amen. सब पापी हैं। Let me tell you something. मुझे आपको कुछ बताने दो। हम इधर बैठते बैठते पाप करते हैं। हाँ, पाप करने को कितना टाइम लगता
सकता है? Come on, am I talking something odd? चलो क्या मैं कुछ अनोखा ऐसा बात कर रहा हूँ? तू अगर तेरे दिल में किसी से नफरत भी करेगा खल्ला से, हाँ हम कितना नफरत करते हैं, कितना नफरत करते हैं, बाकी के तो बोलने की जरूरत ही नहीं, हम क्या क्या करते हैं हमारे दिल में, लेकिन हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, कुछ करते नहीं है, तभी तो जेल में होते हैं। You know, so many things. कितने सारे चीजें, And we come before God and say, Lord, I know you love me. और हम परमेश्वर के सामने आके कहते हैं, परमेश्वर मैं जानता हूँ तू मुझसे प्यार करता है, And you know how much I love you. और तू ये भी जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। We don't hear what God says actually at that time, at that sentence. देखो The reply of that sentence. इस वाक्य का उत्तर परमेश्वर जो कहता है वो हम सुन नहीं पाते। Yeah, and God says, और परमेश्वर कहता है, yeah, I know how much you love me. I know that. परमेश्वर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तू मुझसे कितना प्यार करता है, मैं आताच जानता हूँ, बघितलं तुझं प्रेम, मला माहिती आहे. I know. मैं जानता हूँ। People of God परमेश्वर के लोगों always say, Lord, I'm sorry, forgive me for what I've done. हमेशा परमेश्वर से ये कहो कि हे परमेश्वर मुझे माफ कर जो कुछ भी मैंने किया है। Tell me, who was a better person character-wise, you know? चलो मुझे ये बताओ कि चरित्र से कौन अच्छा था, David or Saul? दाऊद या शाऊल? Come on. चलो No. Shaul Raja. By character, he was much better than David. चरित्र से तो वो दाऊद से अच्छा था, David had 700 wives. और दाऊद के तो 700 पत्नियां थे, And Solomon his son, और सलमान उसका बेटा 1,000. 1000। Record. 1,000 wives. 1000 पत्नियां। Sometimes I wonder, कभी कभी मैं सोचता हूँ, अशा बायका कुठे मिळतात? Really? सच में They live so happily with one another. वो सभी एक दूसरे के साथ कितने खुशी खुशी रह रहे थे। जिंदा है धन्यवाद दो वो मजदूर now David had 700 wives. By character he was horrible. और दाऊद के 700 बीवियां थे और चरित्र से वो बहुत ही खराब था। But every time when you read the Psalms of David, लेकिन हर बार जब आप भजन संहिता पढ़ते हो जो दाऊद ने लिखे थे, he always says, वो हमेशा कहता है, forgive me, O God. मुझे माफ कर प्रभु। That's what God likes. यही तो परमेश्वर को पसंद है। God knows you are mud. देखो परमेश्वर ये जानता है कि हम मिट्टी है। या बोलो बाजू वाले को, तू मिट्टी है, तू मिट्टी है। Can I say in Bombay का हिंदी? Can I say? मुंबई हिंदी में मैं कह सकता हूँ। मैं एक्चुअली बॉम्बे का हूँ, लेकिन बॉम्बे में रहता नहीं हूँ। Some people when I'm living in Bombay, go back to पनवेल, Bombay. कुछ लोगों को लगा कि मैं मुंबई में रहता हूँ और मुझे खत्म होने के बाद मुझे पनवेल मुंबई जाना है। No. I live here only. नहीं, मैं यहीं पे पुणे में ही रहता हूँ। Turn to somebody and say, हिंदी, बॉम्बे हिंदी, okay? चलो किसी के पास बोलकर मुंबई हिंदी में आपको कहना है, ज्यादा खुदक मत, तू इंसान है। ज्यादा बुरा मत, तू इंसान है। You know, we feel that, we feel that, okay, I'm become a mother, I become a father, and now I have become 65, 75, 55, so I am sinless. और अभी हमें ऐसा लगता है कि अब मैं माँ बन गई हूँ या मैं बाप बन गया हूँ या मैं 65 का हूँ या 75 का हूँ या और अभी तो मैं बिल्कुल पाप ही नहीं करता। Yeah, no. ये सोचना भी पाप है। नहीं। Thinking like this also is a sin। Amen. Can you hear an amen? क्या मैं हमें सीख सकता हूँ? Amen. So whenever we come to God, तो जब कभी आप परमेश्वर के पास आते tell हैं, the Lord, I'm sorry, forgive me, Lord. परमेश्वर को कहे, परमेश्वर मुझे माफ कर। Amen. Amen. And mean it from here. और यहाँ से कहो। Don't try to show it to God how humble you are. देखो ये परमेश्वर को ये मत दिखाओ कि आप कितने नम्र हो। ये दिखाने की कोशिश मत करो। परमेश्वर को ये दिखाने की कोशिश मत करो कि आप कितने नम्र हो। देख मैं माफी मांग रहा हूँ। God will say you have to do that. परमेश्वर कहेगा तुझे तो ये करना ही है। Now people listen. अब लोगों सुनो। So first point is when you come to pray, shut the door. तो मुद्दा क्रमांक 1, जब आप दुआ करने बैठते हो तो सबसे पहले दरवाजे को बंद करो। Second, you come that as if that you need God. और दूसरा आपको इस भावना से आना कि आपको परमेश्वर की जरूरत है। Third one, और तीसरा जो है repent of your sins. आपके पापों का पश्चाताप करो। Tell the Lord,
परमेश्वर से कहो, Forgive me and wash me with thy precious blood and cleanse me, make me holy, pure, whiter than snow. और हे परमेश्वर मुझे माफ कर और तेरे लहू से साफ कर और हिम से भी सफेद बना। Now listen, अब सुनो, how will you know God has forgiven you? आपको कैसा पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपको माफ किया है? No angel is going to come down and tell you, yes, you have been forgiven. No. देखो, कोई भी स्वर्गदूत नीचे आकर आपको ये नहीं कहने वाला कि हाँ तुझे माफी मिल चुकी है। People instead, और परमेश्वर के लोगों को अगर देखा गया तो, लेकिन ऐसा है that you will start feeling light in your heart. कि आपको आपके दिल में हल्का महसूस होगा। You will cry for some time maybe, आप कुछ देर के लिए शायद रोगे and you will start feeling very light in your heart. और आपके दिल में आपको बहुत ही हल्का You महसूस will होगा। feel as if a passage is open for you straight for heaven. आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए स्वर्ग की ओर एक मार्ग सीधा खुल गया। Amen. आमेन। Total full bandwidth, और पूरे बैंडविड्थ के साथ 100 Gbps. 100 Gbps, Yeah, not Mbps, Gbps. Mbps नहीं, Gbps, Yeah, full gigabyte power. पूरा गीगाबाइट सामर्थ के साथ। As if you will feel that God is right there in your room. आपको ऐसा लगे कि परमेश्वर वहाँ आपके कमरे में आपके साथ है। Amen. Amen. और कुछ भी बोलोगे, Amen बोला किया जाएगा heaven की ओर से. Amen. That's what you'll feel in your heart. आपके दिल में ऐसा महसूस होगा। Amen. Amen. Now, people of God, next point. अब परमेश्वर के लोग, अगला मुद्दा Watch what he says over here now. देखो, वो यहाँ पर क्या कहता है। And verse 20, I'll read it once again. और वचन 20 को मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ। And when they had said so, he shewed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। Now listen, I'll read to you verse 19 once again. और The end of 19. और सुनो, और वचन 19 का जो आखिर का है No, वो sorry, मैं the middle of 19. और वचन 19 के बीच का जो है वो मैं आपको पढ़ के When सुनाऊंगा। the doors were shut, they were the disciples were assembled for fear of the Jews. वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे तब। Amen. आमेन। They had come together for fear. देखो, वो एक इकट्ठा हुए थे क्योंकि वो डर गए थे। Many times our prayers are coordinated because of fear or some tension. और बहुत बार हमारे जो दुआएं हैं वो डर की वजह से या किसी टेंशन की वजह से हम वो चलाए जाते हैं। And we are so scared of some problem, and that's why we sit for prayer. और किसी समस्या की वजह से हम इतने डर जाते हैं, इसलिए हम दुआ में बैठ जाते But हैं। the problem is, लेकिन समस्या ये है, God can't work where there is fear. देखो जहाँ पर डर है वहाँ पर परमेश्वर काम कर ही नहीं कर सकता। Yeah. You कर ही नहीं know, सकता। people of God, please listen everybody. परमेश्वर के लोग सभी के ध्यान से सुनो। How many want instant answers? कितने लोग तुरंत जवाब चाहते हो? Instant power, instant miracle done. तुरंत सामर्थ, तुरंत चमत्कार। Amen? आमेन। For that you need the right atmosphere. उसके लिए सही माहौल होना जरूरी है। Yeah, you just cannot connect to God with, unequal frequencies. देखो, अगर आपके फ्रीक्वेंसी जो है अगर परमेश्वर के साथ मैच नहीं होते तो परमेश्वर की ओर से जवाब आप पा ही नहीं सकते। Yeah, it is very difficult to, connect with God if you're not having the same wavelength with God. और अगर आपके तरफ परमेश्वर के तरफ के साथ मैच नहीं होते तो जवाब पाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। This Jesus said to them, और यीशु ने उनसे कहा, he stood in the midst of them and said unto them, वो उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, peace be unto you. तुम्हें शांति मिले। Amen. आमेन। That's why we don't have our prayers answered. इसीलिए तो हमें हमारे दुआओं के जवाब नहीं मिलते। Lord, help me, Lord. Lord, do something, Lord. Lord, please help me, Lord. Lord. हे परमेश्वर मेरी मदद कर, हे परमेश्वर कुछ तो कर, हे परमेश्वर मुझे मदद कर, हे परमेश्वर। Lord's half the time goes, अरे शांत हो जा. देखो, परमेश्वर का आधा वक्त जो है वो इसी में गुजर जाता है। कीप क्वाइट। Yeah. Relax. रिलैक्स। It took the Lord to kill that whole stubborn-headed Israelites in the wilderness, but they didn't become quiet. देखो, परमेश्वर को वो जो हट्टी इजरायली थे उन्हें वो अरण्य में ही उसे मारना पड़ा, लेकिन फिर भी वो इजराइल लोग जो है वो बदले नहीं। शांत नहीं हुए। शांत नहीं हुए, माफ कीजिए, शांत नहीं हुए। Every time they would become chaotic. हर बार वो एक मसला खड़ा कर देते थे। और God had to, finish that generation. और परमेश्वर को वो पीढ़ी ही खत्म करनी पड़ी। Yeah, 40 years. 40 साल। Can you imagine? It was only a 11-day journey. आप कल्पना कर सकते हो कि इसे केवल
11 दिन का सफर था from Egypt to Canaan land. मिस्र से कनान देश तक Only 11 days. केवल 11 दिन। Brother, where do you live? Bibewadi. How many days it takes for you to come from Bibewadi to camp here? बिबीवाड़ी से यहाँ पर आने के लिए कैंप में आपको कितने दिन लगते हैं? 20 minutes. Imagine you reach after 40 years over here then. 20 मिनट। कल्पना करो अगर आप 40 साल के बाद यहाँ पहुँचते तो Something is wrong. कुछ तो गलत है। कुछ ऐसा ही हमारे जिंदगी में भी होता है। एक सवाल एक जवाब के लिए कभी कभी 20 साल उठना पड़ता है, क्योंकि उधर ही लॉर्ड घुमाना पड़ता है। लॉर्ड को हमको God has to take us round and round. Here we go round the mulberry bush. और परमेश्वर को हमें वहीं पर घुमाते रहना पड़ता है। Yeah, because we don't want to listen. क्योंकि हम सुनना ही नहीं We चाहते। don't want to humble. हम खुद को नम्र करना ही नहीं We चाहते। don't want to let go of those things that God doesn't like. जो परमेश्वर को पसंद नहीं वो चीज हम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। Mina is short na rela. Mina is short na rela. Jab mano short na apne mitro deख ले के बस पहुंच लेकिन नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। परमेश्वर ने तुझे मैं इसे नहीं छोड़ूंगा तो मैं तुझे नहीं दूंगा तो बैठ बोलते। That's what happens exactly. और यही तो होता है। नहीं, ये मेरा बहुत जिगरा है, ये मेरा जिगरा है, ये मिस्र है लेकिन मेरा जिगरा है, इसको मैं इसके बगैर मैं नहीं जिंदा रह सकता। नहीं, God says, परमेश्वर कहता है जब तक ये नहीं जाएगा तेरे को वो नहीं मिलेगा। कोई आमेन बोलेगा क्या? ऐसे मीटिंग करेंगे क्या हम लोग? Listen everybody. समझिए सुनो। So this is the problem. तो यही तो समस्या है। And Jesus said to them, peace be unto you. और यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। Yeah. हाँ। इस यीशु का बाप भी उनसे यही कह रहा था इतने सालों तक, लेकिन वो शांत होने को तैयार। बेटा आया वो भी बोला peace be unto you. तुम्हें शांति मिले। Yeah. हाँ। Relax. रिलैक्स। Turn to somebody and say relax. किसका बोलो उसे कहो रिलैक्स। Chill. Dhondi chill. Dhondi is female. Then Dhonda is male. Now, remember Jesus was in the ship. The ship, the water was gushing into the ship. याद है आपको कि यीशु उस नाव में था और उस नाव में पूरा पानी जो है वो भर रहा था। Disciples got afraid. और जो चेले थे वो डर गए। They came to Jesus and said, वो यीशु के पास आए और वो कहने लगे we perish, do something. हमारा नाश हो रहा है, कुछ तो करो। Jesus got up यीशु खड़ा हुआ and he said to them, और उसने उनसे कहा why are you afraid? तुम डरते क्यों हो? मैं कंट्रोल में है ना। आमीन। When we don't go with the proper attitude in prayer, जब सही भावना के साथ हम दुआ में नहीं जाते, the Holy Ghost doesn't show up. पवित्र आत्मा वहां पर नहीं आता। इतना लोग चाहते हैं कि आपके दुआ में पवित्र आत्मा आए। आमीन। तो सही ट्यूनिंग में रहो। बोलो बाजल, कम ऑन। सही ट्यूनिंग में रहो। बोलो। सही ट्यूनिंग में रहो। बोलना तो थोड़ा आनंद नहीं भी, कोई 40 वर्ष लगे। बोलो सही ट्यूनिंग में रहो। सही ट्यूनिंग में रहो। Once again, फिर एक बार सही ट्यूनिंग में रहो। once again, सही ट्यूनिंग में रहो। yeah, हाँ, you have to understand. आपको ये समझना जरूरी है। Yeah, you know, I'll never forget this incident. देखो ये घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। You know, one day I was traveling in PMT बोलते हैं, PMT bus. एक दिन मैं पीएमटी बस में जा रहा था And the TC came to me और टीसी जो है वो मेरे पास आया and he asked me for ticket. और उसने मुझे टिकट मांगा। I didn't see his badge. मैंने उसका बैच देखा ही नहीं। So नहीं था उसका badge, था ही नहीं. So I asked him, show me a badge first. तो मैंने उससे कहा आपका बैच पहले मुझे दिखाओ। So he said, शिकला करे जास्ती, शिकला. आता मी तिकीट तू मला तिकीट मागितलं तर तू कोण आहे, कोणी असेल? बॅच नाही, युनिफॉर्म नाही, कुछ नाही, तिकीट दे. अरे तिकीट दिखा बोला तू. मैं बैठा है, तिकीट दे. शो मी योर बॅच. शिकला तू काय शिकलं म्हणजे काय? म्हणजे I don't understand that. देखो मुझे ये समझ में नहीं आया। अरे you can ask for ticket without badge. I can't ask for ticket without my badge. और तू बिना बैच के मुझे टिकट मांग सकता है और मैं मेरे बैच के बिना तुझे टिकट नहीं मांग सकता क्या? So he said, शिकला म्हणजे शिकलोच आहे मी. 6 मध्ये फेल झालो. इंजिनिअरिंग मध्ये 3 वर्ष फेल झालो. आता शिकलोच आहे मी. बीए केलं, ट्रिपल ग्रॅज्युएशननी, स्पेशलायझेशननी पास झालो, शिकलोय.
Badge. So he showed me his badge. I showed my ticket. एक हाथ से ले, एक हाथ से दी। उसने उसका बैज मुझे दिखाया, मैंने उससे मेरा टिकट दिखाया। Why did I have this? How did I have this confidence? और मुझ में इतना धैर्य कैसे आता है? कैसे था? कैसे था? Because मेरे पास टिकट था. See, what I'm saying is, मेरा कहने का मतलब ये है, till you do not have the right attitude, जब तक आपकी भावना जो है वो सही नहीं होती, बोलो सही नहीं होती, जब तक सही नहीं होती, जब तक सही नहीं होती, आप लॉर्ड के सामने खड़े नहीं रह सकते ठीक से। भाई आमीन बोलेगा? हाँ। You know, people. I will tell you this. This is this St. Andrew's School here. देखो यहाँ पर सेंट एंड्रूज स्कूल है। I had my meeting going on this place for many years. और इस जगह पे मेरा मीटिंग जो है कई सालों तक जारी था। There is only a girls' hostel over here actually. और देखा गया था यहाँ सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है। We used to have church over there. और वहाँ पर हम कलीसिया लेते थे। So suddenly, out of somewhere, a lot of boys, Maoli boys, were coming and playing football there. और अचानक से कुछ मवाली लड़के जो है वहाँ पर आकर फुटबॉल खेलने लगे। Around about 15-20 odd people. कुछ 15-20 लोग। And they had all political contacts. और उनके सारे सरकारी कॉन्टैक्ट्स थे। Political contacts थे। Yeah, Rajkir. That time I had become the president of human rights for all of Maharashtra. और उस वक्त मैं ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट बन गया था महाराष्ट्र के लिए। And I used to always be with the commissioner and the IG and many top level, the High Court judge and Supreme Court judge, has to be with them. We had a whole team together. और मैं हमेशा IG, कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है इन लोगों के बीच में रहता था और हमारा एक टीम था। And the chief justice has to be with them. और चीफ जस्टिस जो थे उनके साथ भी मैं रहता था। I used to be with some great people who from the Commonwealth and all that. और कॉमनवेल्थ के भी कई जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके साथ में रहता था। And when I came there, we were having worship going on, and these boys, on purpose, they were playing football there and giving dirty, filthy, bad words very loudly. और जब वहाँ पर स्तुति आराधना जारी था तब उस वक्त वहाँ जो लड़के जो जानबूझकर वहाँ पर बहुत आवाज कर रहे थे और जानबूझकर गाली गलौज भी जोरों से वो कर रहे थे। Maybe they were sent on purpose by the local corporator to create chaos there. और शायद यहाँ का जो लोकल कॉर्पोरेटर है उसी ने उन्हें वहाँ पर भेजा था ताकि वहाँ पर वो गड़बड़ी मचाए। So that it's all the girls this thing, so they will get scared and they will start vacating or something they will do. देखो वो लड़कियां वहाँ पर थे और वो शायद वो ये सोच रहे थे कि वो सब डर जाएंगे और वो जगह जो है वो खाली कर देंगे। Something that's what I don't know. मुझे नहीं पता, शायद ऐसा कुछ होगा। But praise God, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, we were having service there. हम वहाँ पर सर्विस ले रहे थे। And the first Sunday happened. और पहले इतवार हो गया। And they were doing lot of giving dirty, filthy bad words during the game going on, and we were worshiping. और हम वहाँ पर आराधना कर रहे थे और वहाँ पर वो नीचे खेल रहे थे और खेल के वक्त दौरान वो बहुत गाली दे रहे थे और जोरों से दे रहे थे। They knew there was service going on. वो ये जानते थे कि ऊपर जो है वहाँ पर सभा जारी है। But they also knew. लेकिन वो ये भी जानते थे। These are people, they are good people. देखो ये अच्छे लोग हैं। They are people of Jesus. वो यीशु के लोग हैं। They will not do anything. वो कुछ नहीं करेंगे। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Next Sunday, अगले इतवार को they were playing. वो खेल रहे थे। I came. मैं आ गया। I straightaway took my car in the game. मेरा जो कार है वो सीधे गेम के बीच में मैं ले गया। On the field. फील्ड पर। And they asked me. और उन्होंने मुझसे पूछा। Hey, गाड़ी काट रहे? I said to them, तू नहीं गिरे? छुटाई। So they all were wondering who is this guy. और वो अब सोच रहे थे अब ये कौन है? On my vehicle there was a police sticker. और मेरे गाड़ी पर पुलिस का चिन्ह जो है वो स्टिकर जो था वो लगा हुआ by था। the commissioner. और कमिश्नर ने खुद मुझे दिया था। So तो they saw that उन्होंने वो देखा and they got a bit scared. और वो थोड़े डर गए। And I told them, और मैंने उनसे कहा if I see anybody over here, अगर मैं किसी को भी यहाँ पर देखूंगा I'll put you behind bars. मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। And I'll make sure you'll never come out. और मैं ये ध्यान रखूंगा कि जिंदगी भर आप बाहर नहीं आ पाओगे। They all went away. वो सभी चले गए। Next day, next week, अगले हफ्ते they came in one line. वो एक कतार में आए And they asked me, sir, can we play here? और उन्होंने मुझसे पूछा
सर क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? I said, no, you cannot. मैंने कहा नहीं, आप नहीं खेल सकते, Because this is not your property. क्योंकि ये आपकी जायदाद नहीं, This is the property of the school. ये स्कूल की जायदाद है, And you are not allowed to enter this gate. You people are boys and there are girls over here. और तुम्हें इस गेट के अंदर आने का परवाना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्कूल में लड़कियां हैं और तुम सारे लड़के हो, And you cannot come here. और आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। And if you ever try any stunt over here, ever again, और अगर इससे आगे अगर आप किसी भी कोई भी चीज या तरकीब अपनाने की कोशिश करोगे, I will make sure that you will never see the light ever again. और मैं ये ध्यान रखूंगा कि जो सूर्य प्रकाश है आप लोग कभी नहीं देखोगे। They left it, they never came back. उन्होंने वो छोड़ दिया और वापस कभी नहीं आया। How did I have this guts? मुझ में इतना धैर्य कैसे था? Simple. आसान है, I had authority. मेरे पास अधिकार था। Amen. Amen. You have authority in the name of Jesus. आपके पास भी अधिकार है यीशु के नाम में। Amen. When you pray, जब आप दुआ करते हो, go with the right attitude. सही भावना के साथ जाओ, You will have the Holy Ghost right next to you in the room. और कमरे में आपके बाजू में पवित्र आत्मा वहीं पर रहेगा। Amen. Amen. No matter how big the problem is, देखो समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, no problem. कोई समस्या नहीं। Amen. Amen. Don't focus on the problem. देखो समस्या पर ध्यान मत दो। कोई आमीन बोलेगा? Whenever you focus on the problem and pray, God doesn't work. देखो जब कभी भी आप ध्यान समस्या पर लगाकर आप दुआ करते हो, परमेश्वर जो है वो कार्य नहीं करता। But when you focus on Jesus, लेकिन जब आप ध्यान यीशु पे लगाते हो, what happens? क्या होता है? Miracles happen. चमत्कार होते हैं। What did Jesus do here? यीशु ने यहाँ पर क्या किया? Look at it, verse 20. देखो इसके बाद देखो वचन 20। He shewed unto them his hands and his side. और उसने अपने हाथ और पंजर जो है उनको दिखाए। Amen. Amen. He showed it to them. उसने उन्हें दिखाया। He shifted their focus from fear to him. और यीशु ने उनका ध्यान जो है उनके डर से उस पर लगाया। Amen. Amen. बघा माझ्याकडे बघा, he said. उसने कहा देखो मेरे पास देखो। तुम्हारा ध्यान भय से हटाओ. Because they were scared. Read that. What it says in verse 19. The disciples were assembled for fear of the Jews. क्योंकि देखो वचन 19 में वहाँ पर लिखा है कि यहूदियों के डर के मारे वो वहाँ पर जमा थे और खुद को बंद कर लिए थे। उनका इकट्ठा होना डर के बेस पे था। Amen. Amen. But the moment Jesus came, लेकिन जैसे ही यीशु आ गया, look at me. मेरे पास देखो। Amen. Whenever you pray, if you want the Holy Ghost to come, focus on knowing Jesus. और जब कभी भी आप दुआ करते हो और अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा वहाँ पर आए, तो इस पर ध्यान लगाओ कि आपको यीशु को जानना है। कोई आमेन बोलेगा? आमेन. तेव्हा मी तुला शोधायला आलेलो, तुला भेटायला आलेलो. माझ्या समस्या भरपूर आहे मला मान्य आहे, पण मी तुला भेटायला आलेलो आहे. आणि जिथं तू आहे तिथं काही अडचण नाही. कोण आमेन. Your math should be clear with God. देखो आपका गणित परमेश्वर के साथ बहुत ही साफ होना चाहिए। Why does it take such a long time for God to answer your prayers? देखो आपके दुआओं को जवाब देने के लिए परमेश्वर को इतना वक्त क्यों लगता है? Because you're focusing on all the wrong things. क्योंकि आपका ध्यान जो है सारे गलत चीजों पर है। I have learned one thing from God. देखो मैंने परमेश्वर की ओर से एक चीज सीखा है। अगर परमेश्वर ने आपको चमत्कार नहीं दिया तो अनुभव दे रहा है। आमेन। क्या बोला मैंने? अगर परमेश्वर ने अगर आपको चमत्कार नहीं दिया है तो अनुभव दे रहा है। If God is not giving you a miracle, then He's giving an experience to you. Amen. An experience is far greater than a miracle. और अनुभव जो है ये चमत्कार से कई बढ़कर है। Amen. Because suppose okay, how many people are living for somebody else? चलो कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि किसी और के लिए आप जी रहे हो? Anybody? कोई है? No. कोई भी नहीं। Everyone is living for myself, me. सभी जो है वो खुद के लिए जी रहे हैं। Can I ask you a question? क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ तो बोलो यार। नहीं भी बोलो तो पूछूंगा मैं। Now my question is, anybody seen a mango tree? किसी ने आम का झाड़ देखा है? Come on, mango आम का झाड़ बोलेगा आमेन. Okay. Does the mango tree live for itself or live for somebody else? आम का पेड़ जो है वो खुद के लिए जीता है किसी और के लिए? और के लिए. Amen. Anyone seen a coconut tree? किसी ने नारियल का झाड़ देखा है? किसके लिए जीता है? किसी और के लिए या खुद के लिए? खुद के लिए जीता है. Anybody seen a jackfruit tree? Jackfruit tree? किसी ने जैकफ्रूट का झाड़ देखा है? Fennis के tree. फेनिक्स ट्री। What? It looks for itself. वो क्या खुद के लिए जीता है? Amen. It's necessary.
every creation of God except man. परमेश्वर की हर एक निर्मिति इंसान को छोड़, Yeah, हाँ, lives for somebody else. किसी और के लिए जीता। Whenever you live for somebody else, देखो, जब कभी आप किसी और के लिए जीते हो, your life has meaning. देखो आपके जीवन में अर्थ होता है। Amen. But when you become swarthy, selfish people, लेकिन जब आप स्वार्थी हो जाते हो, me, myself, and me only. मैं और केवल मैं ही, I love this Mac. I love this laptop. I love this laptop. It's mine. I'll not give to anybody. I'll not give to anybody. This is mine. This is mine. मुझे लैपटॉप बहुत पसंद है, मुझे लैपटॉप बहुत पसंद है, मुझे ये आईपैड बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, मेरा ऐप मैं किसी को नहीं दूंगा। मर गया, इसके बाद क्या? ये हाथ भी बंद नहीं हो रहे, ऐसे काटना पड़ेगा इसको, हाथ काट के फोल्ड करना पड़ेगा। We had a funeral once some years ago. कुछ साल पहले हमने किसी को गाना था, गाड़ने वाले थे, गाने वाले थे, there was no hole available. और वहाँ पे खड्डा नहीं था। So we managed to, ask one family to remove their dead father so you can bury the fresh one inside. तो हमने एक परिवार से पूछा कि आपके पिता को जहाँ पर गाड़ा था, क्या हम वो खड्डा खोल सकते हैं ताकि हम जो अभी मरे हैं उन्हें वहाँ पर गाड़ सकें। The daughter said, I love my, she said, okay, no problem. तो उन्होंने कहा कोई समस्या नहीं। And she was standing at the grave of her father और जो who was dead 3 years. और जो बेटी थी जिसका बाप मर गया था, और उसे मर कर 3 साल हो चुके थे, More than 3 years. 3 साल से कहीं ज्यादा हो चुके थे, और वो कब्र के बाहर वहीं पर खड़ी थी। And she was talking, I love my father, I love my father, I love my father, I love my father. She was talking for a very long time, I love my father. She told many things about her father, she loved my father. और वो ये कह रही थी कि मैं मेरे पिता से बहुत प्यार करती हूँ, मैं मेरे पिता से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पिता से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और बहुत देर तक वो उसके पिताजी के बारे में ये कह रही थी, और ये कह रही थी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। And suddenly, और अचानक से जो कब्र खोदने वाला है, he removed the copy of the father and gave it to her. कब्र खोदने वाला था, उसने वो कब्र निकाल के उसे दिया। ले, He said to her, ले तेरे बाप। We people are so self-centered. देखो हम लोग जो है, हम खुद के बारे में इतना सोचते हैं। Amen. Amen. I'm not focused only me. How many remember that there was an ad? Gimme, Vijaya Bhatta. कितने लोगों को वो ऐड याद है? गिमी विजय बाटा। Amen. Amen. नहीं मालूम है? अरे क्या? You should be born in our time, आपको हमारे वक्त में पैदा How old are you? 30. I'm 15. Now, so whenever you go to God in prayer, तो जब कभी भी आप दुआ में परमेश्वर के पास जाते हो, अगर जवाब नहीं मिल रहा है, एक्सपीरियंस तो मिल रहा है, और उसमें से बाहर निकलो कैसा? Open your Bibles to Psalm 23, everybody. Come on, Psalm 23. आइए आप हमारे बाइबल जो है भजन संहिता इसका 23वां अध्याय हम पढ़ेंगे। I will close over here now. और यहाँ पर मैं बंद करता Yeah, हूँ। Psalm 23, everybody, चलो भजन संहिता 23 and read verse 4. और वचन 4 को हम पढ़ेंगे। जोर से, जोर से. Come on, yeah, read. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, Yeah, चाहे. Say that in Hindi. चाहे मैं Slow. Yeah. चाहे हाँ। मैं घोर अंधकार से भरी हुई हाँ। तराई में होकर चलूं, Even though I walk through the valley of shadow of death. अगर मैं मौत की परछाई के तराई से होकर भी गुजरूं। Amen. 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 How many want a revelation here? कितने लोग यहाँ पर प्रकाशन चाहिए? Amen. Amen. If you read from verse 1 to verse 3, अगर आप वचन 1 से वचन 3 तक पढ़ोगे, David the psalmist is saying, जो दाऊद जो भजन संहिता जिसने लिखा था वो ये कहता the है, Lord is my shepherd, I shall not want. He's really thanking God for all that God is doing for him. वो यहाँ पर कह रहे हैं यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, और यहाँ पर वो परमेश्वर ने जो कुछ भी उसके लिए किया वो सभी चीजों के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा But है। suddenly in verse 4 he says, और अचानक से वचन 4 में वो कहता है, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. अगर मैं मौत से भरी हुई परछाई के तराई से गुजरूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। My question is, मेरा सवाल ये है, when the Lord is your shepherd, जब परमेश्वर आपका चरवाहा है, when you are a sheep, जब आप उनके भेड़ हो, when he is leading you, और जब वो आपकी अगुवाई कर रहा है, my question is, मेरा सवाल ये है, from where is coming the shadow of valley of death? तो मौत की परछाई की तराई कहाँ से आती है? Yeah, जब परमेश्वर तुझे चला रहा है तो मौत की तरह क्यों आनी चाहिए? Yeah, हाँ, बोलो मेरे साथ, yeah, हाँ,
ही नहीं। कि मौत की तरह ही होगी, काय तो मौत की तरह ही होगी, जीवन की तरह होनी चाहिए। Yeah. We don't expect it. देखो हम इसकी अपेक्षा करते ही नहीं। We want everything to be good, only values, only what is that? The Lord is my shepherd, I shall not want, I shall eat green, he led me beside the green pastures. और हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। हरी बस हमें यही चाहिए। हरी Yes, we want everything nice, everything good. When we come to the Lord, should be hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. It should be only अगर परमेश्वर में आके सब कुछ हरी 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 होना चाहिए, सब कुछ अच्छा 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 होना चाहिए, हालेलुया, सब कुछ होना चाहिए, बस। और मौत की तरह और कोई मौत की तरह इधर ये कौन सा है बीच में, इधर कौन आता है? And look at that, it says he prepares a table in the presence of my enemies. और इसके पास देखो हमारे दुश्मनों के सामने वो मेज को बिछाता है। हमको मेज चाहिए, नो दुश्मन। यस, बराबर नहीं है, फॉल्ट प्रिंटिंग में। बराबर की नहीं, मैं बोले मेरे में बोले की नहीं, पूरे बोले अपनी बोले एकदम पैर में बोले। ऐसे मेरे को समझ में आते नहीं, लोड में यानी कि बैठ में मेरे को जो सीधा होना चाहिए, टेढ़े मेढ़े कहीं पर नहीं। मेरे को भी समझ में नहीं आते, ये ऐसे इधर क्यों नहीं गए? मेरे को नहीं आते, मेरे को नहीं आते। कहीं को इधर खड़ी ले। ऐसे मेरे को नहीं समझ में आता है। Why? मुझे नहीं पता क्यों। अगर मैं चाहते हो तो शत्रु होना जरूरी है। आमीन। अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहे हो तो मौत की चढ़ाई होगी ही। Valley of shadow of death, मौत की परछाई की तराई। people of God, he's not saying, look at the psalm, he's not saying like this. देखो भजन संहिता के पास यहाँ पर देखो कि वो ऐसा यहाँ पर ऐसा नहीं कहता। He's saying, even the both valley of shadow of death, I will fear no evil. तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर मौत की परछाई के तराई से गुजरूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। He's not saying like this. वो ये नहीं कह रहा है कि even if I go to the valley of shadow of death, get me out fast, get me out fast. अगर मैं मौत की परछाई के तराई से गुजरूं तो मुझे जल्दी बाहर निकाल, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकाल। नहीं, जल्दी बाहर नहीं निकाल, मेरे को उसमें से ठीक से बाहर निकलने दे, क्योंकि यहाँ पर जिसके लिए लाया है वो मुझे सीखना है। I want to learn why you got me here. मुझे सीखना है कि यहाँ पर मुझे क्यों ले आया। Amen. Amen. Don't try to jump out of the juicer. देखो उस जूसर से बाहर कूदी लगाने की कोशिश मत करो। Let your juice be removed so that someone else can drink it. Hallelujah. आपका जूस और पूरी तरह से निचोड़ के निकाल दो ताकि कोई और उसमें से पिए। हालेलुया। Come on. People of God, whenever you go through, whenever you're walking with Jesus, परमेश्वर के लोग जब कभी आप यीशु के साथ चलते हो, look at it, what he says over here, verse 4 once again. इसके बाद देखो यहाँ पर वचन 4 में वो क्या कहता है। He's saying over here, वो यहाँ पर कहता है, lead me to the, even if I go through, अगर मैं उसमें से गुजरूं तो भी, बोलो पीछे जोर से बोलो, गुजरू। मैं यहाँ पर रहने नहीं आया हूँ। This is not going to be my permanent address. देखो मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रहने नहीं आया, I'm going through it. मैं इसमें से गुजर रहा हूँ। आज आपको इस हालत में मिला, इसका ये मतलब नहीं मैं हमेशा यहीं पर रहने वाला हूँ, क्योंकि इसके थ्रू में निकल रहा हूँ। Maybe today if I met you, you may be suffering from cancer. Maybe, I don't know. शायद आज जब मैं आपसे मिल रहा हूँ शायद आपको कैंसर हो, शायद मुझे नहीं पता। But this is not going to be the end of your movie. लेकिन आपके पिक्चर का यह आखिरी नहीं होने वाला। एक डायलॉग फेमस है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई आमीन बोलेगा क्या? आमीन, क्योंकि पार्ट 2 लगने वाला है और पार्ट 2 में मैं कैंसर से ठीक होके जिंदा रहने वाला हूँ और उसमें you are not on your best level. अगर आप आपके सबसे बेहतरीन स्तर पर नहीं हो, It means end is not come. इसका मतलब आखिरी भाग जो है वो अब तक आया नहीं। Amen. Hallelujah. Because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, I know the plans I have for them. मैं जानता हूँ आपके लिए जो योजना मैंने कर रखी है। Good plans. अच्छी योजना है, With an expected end. एक अपेक्षित अंत के साथ। Amen. हम उनमें से नहीं है जो ट्रक के नीचे आके मरते हैं। हम उनमें से नहीं है जो हमारे ऊपर कोई खंबा गिरेगा और मरेंगी।
खंबा गिर सकता है, सिर नहीं फूटेगा, खंबा फूट सकता है। Yeah, come on, you are people of promise of God. चलो आप ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के अभिवचन के ऐसे लोग हो। You need to understand this. आपको ये समझना जरूरी है That when you're going through why God wants to give you an experience. क्योंकि जब आप उसमें से गुजर रहे हो, उसमें से चल रहे हो, तब परमेश्वर आपको एक अनुभव देना चाहता है। Amen. Why? क्यों? So that when someone else follows, ताकि जब आपके पीछे कोई और आ जाता है, you can tell that person, आप उस व्यक्ति से कह सकते हो, do not fear, I have been through this. डर मत, मैं इसमें से गुजर चुका हूँ। I know what God does. मैं जानता हूँ परमेश्वर क्या करता है। Amen. Don't be self-centered. देखो खुद पे ही या स्वार्थी मत रहो। Always understand God wants to use you to bless others. देखो हमेशा ये समझ लो कि परमेश्वर को आपका इस्तेमाल करना है दूसरों को आशीषित करने के लिए। When I became deaf, dumb, blind, half paralyzed, जब मैं अंधा, बहरा, गूंगा और आधा लकवा मुझे लग गया था, तब उस वक्त I said, Lord, why like this? मैंने कहा परमेश्वर ऐसा क्यों? My mother was asked this question. She would always tell me that repent of your sins, repent of your sins. You need to really get right with God. और मेरी माँ जो है वो हमेशा मुझसे कहती थी कि तेरे पापों का पश्चाताप कर, तेरे पापों का प्रायश्चित कर, क्योंकि तूने बहुत कुछ गलत किया है। And my relatives would tell my mother, और मेरे रिश्तेदार जो थे वो मेरी माँ से कहते हैं, why do you speak like that to your son? तेरे बेटे से तू ऐसी बातें क्यों करती है? Why do you tell him to repent and you've done something horrible? तू हमेशा उससे ये क्यों कहते हैं कि पश्चाताप कर, प्रायश्चित कर, और तूने कुछ तो बहुत ही भयानक किया है। Don't speak like that. He's already in such a horrible situation. You're hurting him more. ऐसा मत करो, पहले से कितना बुरी हालत है उसकी, और तू ये कहकर उसे दुखा रही है तू। And my mother would tell them, और मेरी माँ उनसे कहती थी, I speak in Marathi for them. मैं मराठी से मैं कहूँगा, I'm a Maharashtrian, I speak in Marathi. मैं महाराष्ट्रन हूँ, तो इसलिए मराठी हूँ, इसलिए मराठी में मला माहिती नाही काय केलं ह्यांनी, पण नक्की नाही काहीतरी फार विचित्र कामं केले. My mom had no idea what I was. और मेरे माँ को इल्म भी नहीं था कि मैं क्या था। I was out People of God, परमेश्वर के लोगों, I would always think, मैं हमेशा सोचता था, क्या माय? She passed away, last year. वो पिछले साल गुजर गई। But even when she was, I could not say she was very old. Not very old. She was pretty young, actually. देखो बहुत 70, वो 75 की थी कुछ ऐसे, or 78 maybe. वो ज्यादा बूढ़ी नहीं थी, लेकिन But जवान hair थी। never became white. उनके बाल जो थे वो कभी सफेद नहीं हुए। Always Godrej and whatever. हमेशा गोदरेज और क्या करना। Even if she would be in the hall, I would try to run from somewhere else, avoiding her. अगर वो हॉल में भी रहते तो मैं कहीं और से निकलने की कोशिश करता था ताकि मैं उसके सामने ना आऊं। सापडला की 3 तास धुलाई काय सर्फेक्स धुतं है horrible. बहुत ही बुरा। She always said, वो हमेशा कहती थी, repent. पश्चाताप कर। Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो। Whenever you are going through a horrible situation, I said, Lord, why like this? Why? Malaska! देखो मैंने परमेश्वर से कहा कि ऐसा क्यों, मैं ही क्यों? Always learn to ask this question to yourself. हमेशा ये सवाल खुद से पूछना सीखो। And ask God this question. और परमेश्वर से ये सवाल पूछो, मैं ही क्यों? Why me, Lord? मेरे पीछे दो से बोल सकते हैं, come on everybody. एक आवाज बोल सकते चलो एक आवाज में। Your God का येडा नहीं है ना? हाँ, हिला काय? हिला डायबिटीज असं नहीं है ते. बोल हिंदी में. और हमारा परमेश्वर जो है वो ऐसा पागल नहीं है, इसको इसको डायबिटीज दे दे। ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है। तुम्हाला काय वाटतं देव आपला ठमाय देव आहे? असं बसलं आपला आराम कर. कैसे क्या करने का है आज? परमेश्वर, वो सिस्टर बहुत डायबिटीज में वो दुआएं दे रही है, उसको चंगा करो ना। अरे किसको डायबिटीज हुआ है? जीसस कॉज में आके बैठते देखो हंसते, वो डायबिटीज हो गई? आपको नहीं मालूम? क्या मतलब? सच्ची में उसको डायबिटीज हो गई? सच्ची में? और उधर का सब इधर अरे हो गया ना? इसको? हाँ, पर तो बहुत बुरा लग रहा है, इसको डायबिटीज हो गई तो. अरे
think God is like that? आपका क्या लगता है परमेश्वर ऐसा है? No, He Right. knows in your life what's happening. वो जानता है कि आपके जिंदगी में क्या हो रहा है। My question again. मेरा सवाल फिर से, मिचका, मैं क्यों? मिचका, मिचका, हिचका, हिचका, हिचका। Everything has a plan. Everything has a purpose. देखो, हर एक चीज के पीछे एक मकसद है, एक योजना है। Amen. Amen. God is not, want to give someone now. I will give this. परमेश्वर ऐसा नहीं कि इसको आज क्या दे, चलो इसको ये दे देते। Somebody said, can I? क्या मैं? May I? क्या मैं? Isaiah, in the book of Isaiah, it says, God's plans are not your plans, God's thoughts are not your thoughts. As heavens are higher than the earth, and so are my ways and my thoughts higher than your thoughts. और यशायाह के पुस्तक में ये लिखा है कि हमारी जो योजना है वो परमेश्वर की योजना नहीं, और परमेश्वर हमारी जो सोच है वो परमेश्वर की सोच नहीं, और परमेश्वर की सोच जो है वो आकाश जितने पृथ्वी से ऊंचे है उतने उतना उनका फर्क है, उतना ऊंचा है। Can I say something? क्या मैं कुछ कह सकता Can I हूँ? give a revelation? तो क्या यहाँ पर एक प्रकाशन दे सकता हूँ? God doesn't think. परमेश्वर सोचता ही नहीं, He has thought उसने सोच के रख दिया है once. एक ही बार। If he has to think, अगर उसे सोचना पड़ता है तो he is not God. फिर वो परमेश्वर नहीं। And now you'll say, how come? अब आप कहोगे कैसे क्या? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ। Imagine, कल्पना करो, brother, come here. Where are you working? आप कहाँ पर काम कर रहे हो? You working in this one? Oh, great. So imagine you are leaving your home to come to Jesus Christ in the morning. कल्पना करो कि सवेरे आप आपके घर पर छोड़कर जीसस कॉल के यहाँ पर आ रहे हो, And he is brushing his teeth. और मैं जो हूँ मैं दांत घिस रहा हूँ, And I am about to drink water और ये जो है पानी पीने ही वाले हैं। in my house. उनके घर पर, He is in his house. मैं मेरे घर पर, You are about to kick the vehicle, start the vehicle. और आप बस गाड़ी को किक मारने ही वाले हो और शुरुआत करने वाले हो। Action like handle किधर है? Now, अब be level. Now God, अब परमेश्वर दांत किस तरह? God thinking. परमेश्वर सोचने लगता है, अभी इसके लिए क्या करूं मैं दिन में? बराबर? So, तो everybody has paused. सभी जन जो है थोड़े देर के लिए, यानी जब तक परमेश्वर सोचा हो तब तक के लिए पॉज हो गए। Sister is frying egg, अंडा ऐसे हाथ में। बहन जो है वो अंडा बनाने वाला, अंडा जो हाथ में है, बना अंडा कैसे बनेगा? अंडा पका रहे हैं और अंडा ऐसे हाथ में, Sister is going to be ज्वार की भाकर। और ये सिस्टर जो है वो ज्वार की भात, ज्वार की भाकर, बाजरे की रोटी, बाजरे की हाथ रोटी में ऐसे लेके, हाथ में ऐसे लेके, whole world. पूरी दुनिया, Because God is thinking. क्योंकि परमेश्वर सोच रहा है इसको क्या करना है दिन में? इसके लिए क्या करना है दिन में? और नहीं लगता है? अजीब नहीं लगता है? सोचो अगर God starts thinking. परमेश्वर सोचना शुरू करेगा See, तो when do we think? देखो हम कब सोचते हैं? जब कुछ करना है। Amen? लॉर्ड ने करके रखा है। Amen? 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 Yeah, it's already done. वो पहले से हो चुका है। तो ऐसा नहीं है सिचुएशन। ऐसा नहीं है। He is thought already. वो पहले से सोच के उसने रख दिया है। Now, when Isaiah wrote that, जब यशायाह ने ये लिखा था, every prophet writes in his own words what he understands. देखो हर भविष्यवक्ता जो है उन्हें जिस हिसाब से समझता है उन्हीं के शब्दों में वो वैसे लिखते हैं। Amen. Amen. So, it's actually not God's thoughts, but God's one thought. वो देखा गया तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर के विचार नहीं, लेकिन परमेश्वर केवल एक ही विचार था। और एक ही विचार में पूरे आप इस दिन पर यहाँ बैठोगे, इस कुर्सी पे बैठोगे, एक कुर्सी बनाई जाएगी, आपका ये मटेरियल बनाया जाएगा, उसमें सब कुछ शामिल है। एवरीथिंग इज डन। सब कुछ उसमें शामिल है और हो चुका है। आमीन। मैं ये कपड़ा पहनूंगा, ये ग्लास मेरे हाथ में रहेगा, इसकी का नहीं, एक पानी का ग्लास।
Yeah, you know, ये रहेगा सब, everything is done. सब कुछ हो चुका है। Yeah, this Mac will be there in my life. ये भी डन है, आपको भी बीवी मिलेगी, वो भी डन है। Everything is done. सब कुछ हो चुका है। Yeah, हाँ, the people of God. परमेश्वर के लोगों, And आपण फुकटचं काळजी करतो. Amen. Amen. I'm closing over. People of God, listen, everybody. यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ। परमेश्वर के लोगों सभी जन ध्यान से So सुनो। when you are going to pray now, तो आज से आगे जब आप दुआ करोगे, टेन्शन घेऊन प्रार्थना नाही करायचं. कोणी आम्ही म्हणेल का? विचार कर बसत नाही की काय होईल, काय होईल, काय होईल. देवावर विश्वास ठेवा. देवाची योजना चांगली आहे. हे बघू नका मला कधी आरोग्य मिळेल. आरोग्य मिळेल कधी नाही. आरोग्य मिळालं आहे. आमेन. एकमेकाला बोला डनच आहे. बोला डनच आहे. डनच आहे. डनच आहे. It is done. हो चुका है। Amen. When you come to God in that faith, God will hear your prayer. देखो, जब इस विश्वास के साथ आप परमेश्वर के पास आते हो, तब परमेश्वर आपकी सुनेगा। Before that, you come in your room. उसके पहले वो आपके कमरे में आएगा, He start touching you. वो आपको छूने लगेगा। You feel the power of the Holy Ghost all over your body. आपके शरीर के ऊपर आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप महसूस करोगे। You will feel like Samson. आपको शमशोन की तरफ आपको महसूस होगा, You know to face any power of darkness. और आप किसी भी अंधकार की ताकतों का सामना आप कर सकते हो। हमें बोलेगा क्या?